A very fresh good morning to all my dear students. Today we are going to start our next topic, that is nucleus. अब तक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के बारे में पढ़ चुके हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज द न्यूक्लियस. इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड कॉन्स्पिशियस ऑर्गेनेलिज ऑफ द सेल. सेल की सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्स्पिशियस ऑर्गेनेली जो है दैट इज न्यूक्लियस. बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनेली विच कंट्रोल्स ऑल द फंक्शंस ऑफ अ सेल. This nucleus is present in the center of the cell. Nucleus is present in the center of the cell in animal cell, but in case of plant cell, it is shifted towards the periphery due to presence of a large vacuole. Animal cell की बात करें तो हमें ये सेंटर में एक डार्क कलर की बॉडी दिखाई देगी. अगर हमने चिक सेल्स लेते हैं, if we withdraw our chick cells with the help of a scalpel, then keep it on the slide and add methylene blue to it. Then when we see it under microscope, what we see that in the center of the cell there is a dark colored body is seen. That dark colored body is the nucleus. In plants का डायग्राम we have already drawn. plants का डायग्राम हम ड्रॉ कर चुके हैं. प्लांट्स के डायग्राम में हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस जो है वो एक साइड पे है, दैट इज इट इज शिफ्टेड टू द पेरिफेरी. व्हाई? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ए लार्ज वैक्यूल. एक लार्ज वैक्यूल की प्रेजेंस की वजह से वो पेरिफेरी पे यानी कि एक तरफ वो शिफ्ट हो गया है. जनरली देयर इज वन न्यूक्लियस प्रेजेंट इनसाइड द सेल. मेनली एक न्यूक्लियस सेल के अंदर प्रेजेंट होता है, यानी कि जो सेल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, यूनिन्यूक्लिएट होते हैं. लेकिन देयर आर सम सेल्स विच आर बाइन्यूक्लिएट. कुछ ऐसे भी ऑर्गेनिज्म हैं जिनके अंदर मोर देन वन न्यूक्लियस है, जिसका एक कॉमन एग्जांपल एक प्रोटोजोआ है, दैट इज पैरामीशियम. दैट इज पैरामीशियम क्योडेटा. This is binucleate and also some cells which have more than one nuclei. कुछ ऐसे भी सेल्स हो सकते हैं जिनके अंदर एक से ज्यादा न्यूक्लियाई हैं, more than one nuclei हैं. Now we are going to discuss the structure of the nucleus. अब हम बात करेंगे इस न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर की. उससे पहले हम देखते हैं कि what does the nucleus consist of. न्यूक्लियस के अंदर मेनली क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स, डीएनए, आरएनए एंड लिपिड्स. इन चार चीजों का बेसिकली न्यूक्लियस बना होता है. 80% प्रोटीन्स, 12% डीएनए, 5% RNA and 3% lipids are there. This is the constitutions of the nucleus. Now we are going to discuss the structure of nucleus. nucleus की structure की हम बात करेंगे तो nucleus की structure में there are 5 parts are present in the structure of nucleus. Before we proceed, firstly I am going to draw the diagram of the nucleus. You also have to draw this diagram in your fair notebook. आप लोगों को भी ये अपनी fair notebook में ये diagram जो है ड्रॉ करना है. Diagram, or this is the structure of a nucleus. Nucleus consists of 5 parts. First is the nuclear membrane. First part is the nuclear membrane. Second is the nucleoplasm, or it is also known as karyolymph. Third is chromatin material. Fourth one is nucleolus. And fifth one is nuclear matrix.
There are 5 parts present in the structure of a nucleus. Now we are going to discuss these things one by one. Firstly, nucleus is surrounded by 2 membranes, that is nuclear membrane. This is the outer membrane. This is the outer membrane of a nucleus, and this is the inner membrane. Inside the nucleus, this is present nucleoplasm. Chromatin, nucleolus. These are the nuclear pores. Okay, first membrane, second is the nucleoplasm, third chromatin, nuclear pores, nucleolus. Firstly, we are going to discuss about the membranes, nuclear membranes. You or note down the 5 things or 5 parts of the structure. Firstly, we are going to discuss about the nuclear membrane. This nuclear membrane, nucleus having 2 membrane, outer membrane and inner membrane. Nucleus is made up of 2 membrane. Outer membrane of nucleus is in contact or is in a contact with the series of membranes. जो आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, वो एक सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन के कॉन्टेक्स्ट में होती है, और उस सीरीज ऑफ मेम्ब्रेन्स को हम बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, CULUM. This is endoplasmic reticulum that bear ribosomes on their surface, जिसके सरफेस पे इस तरह से राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं. You have drawn the ribosomes on all these sides. Okay. Inner membrane is smooth. अंदर वाली membrane है that is smooth, that is not connected with any membrane or any network. In between these 2 membranes, there is space is present, and this space is known as perinuclear space. This space is known as perinuclear space. These membranes or nuclear membranes or these nuclear membranes are also known as karyotheca. कई जगह इसका नाम हमें karyotheca, karyo word related to nucleus, theca means coverings. These nuclear membranes prevents the materials by going it into the cytoplasm. ये मटेरियल के इस सेल न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को, न्यूक्लियस के मटेरियल को इसके अंदर ही रखती है, बाहर सेल के साथ एक्सचेंज होने से प्रिवेंट करती है. बट एट सम पॉइंट्स दिस इनर मेम्ब्रेन फ्यूजेस विद द आउटर मेम्ब्रेन. कई ऐसे पॉइंट्स है जहां ये इनर मेम्ब्रेन आउटर मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज हो गई है, and where these membranes get fused, then some pores get generated. वहां बीच में कुछ pores आ गए हैं जिनको हम न्यूक्लियर pores बोलते हैं. इनका काम क्या है? These allow the exchange of materials between the nucleus and the cell. सेल के और न्यूक्लियस के बीच में जो मटेरियल एक्सचेंज होगा, that is with the help of nuclear pores. Clear? Next to the nuclear membrane, next is the nucleoplasm. Next is the nucleoplasm, or it is also known as karyolymph. Karyolymph or nucleoplasm, the material or the liquid material present inside the nucleus. nucleus के अंदर जो liquid material present है, that is the nucleoplasm. और इस nucleoplasm it contains enzymes. इसके अंदर कुछ एंजाइम्स हैं, प्रोटीन्स हैं, मेटल आयंस हैं, फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, आरएनए. किसकी फॉर्मेशन के लिए? फॉर द फॉर्मेशन ऑफ डीएनए, आरएनए, राइबोसोमल सब यूनिट्स. डीएनए यानी कि डी ऑक्सी राइबो nucleic acid, while RNA is the ribonucleic
न्यूक्लिक एसिड। इनके सिंथेसिस के लिए एंजाइम्स, प्रोटीन, मेटल, आयंस, वो सारी चीजें इस न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होती हैं। हैव यू अंडरस्टूड? आई होप यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड। समझ में आ गया होगा अच्छे से अब तक। नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद आता है क्रोमेटिन मटेरियल, दैट इज क्रोमेटिन। थर्ड पार्ट इज द क्रोमेटिन मटेरियल। Thread-like structures present in the cytoplasm, nucleoplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म और इनसाइड द न्यूक्लियस एक नेटवर्क होता है थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स का, जिसको हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं। दिस क्रोमेटिन मटेरियल गेट कंडेंस्ड ड्यूरिंग और एट द टाइम ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन के टाइम पर ये क्रोमेटिन मटेरियल कंडेंस हो जाता है एंड इट इज कन्वर्टेड इनटू क्रोमोसोम्स। कंडेंस होने का मतलब है कि क्रोमेटिन मटेरियल कैसा हो जाएगा? शॉर्ट एंड थिक। क्रोमेटिन मटेरियल कैसा हो जाएगा? शॉर्ट और थिक हो जाएगा। अब उस शॉर्ट और थिक मटेरियल को हम क्या बोलेंगे? क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स कब बनते हैं? ये सेल डिवीजन के टाइम पे ही बनेंगे, अदरवाइज ये थ्रेड लाइक मैनर में प्रेजेंट होगा सेल न्यूक्लियस के अंदर। दीज क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स एंड इन डिफरेंट टॉपिक आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स के बारे में अलग से बताऊंगी मैं तुम्हें। यहाँ सिर्फ हम इतना ही बताते हैं, दीज कंटेन्स हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन। इनके अंदर हमारी हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन होती है, हमारे कैरेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होती है कि कैसे कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ट्रांसमिट होते हैं, उनके बच्चों में जाते हैं। ये हमारे कैरेक्टर्स को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट टू द क्रोमेटिन मटेरियल, नेक्स्ट इज द न्यूक्लियोलस। फोर्थ पार्ट इज द न्यूक्लियोलस। इन the nucleoplasm of the nucleus, there is a dark color round body is present, that is known as nucleus। एक डार्क कलर की राउंड बॉडी प्रेजेंट है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। ये न्यूक्लियोलस इट इज रिच इन प्रोटीन्स। ये किसमें रिच होता है? इसके अंदर बहुत सारे प्रोटीन्स और आरएनएज होते हैं। इट इज रिच इन प्रोटीन्स एंड आरएनएज। सिर्फ इसका ये काम, इसके अंदर क्या होता है? न्यूक्लियस के अंदर, न्यूक्लियोलस के अंदर पूछा जाए तो इट इज रिच इन प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज द आफ्टर न्यूक्लियोलस, फाइनली लास्ट पार्ट इज द न्यूक्लियर मैट्रिक्स। व्हाट इज न्यूक्लियर मैट्रिक्स? ए फाइन क्रिस क्रॉसिंग प्रोटीन कंटेनिंग फाइब्रिल्स आर प्रेजेंट। क्या प्रेजेंट होते हैं? फाइन criss-crossing fibrils, protein containing fibrils, न्यूक्लियर मैट्रिक्स क्या है? फाइन क्रिस क्रॉसिंग प्रोटीन कंटेनिंग फाइब्रिल्स प्रेजेंट होते हैं न्यूक्लियस के अंदर। इन प्रोटीन कंटेनिंग फाइब्रिल्स को न्यूक्लियर मैट्रिक्स बोलते हैं। इनका एक एंड जो है वो न्यूक्लियर एनवेलप के साथ ज्वाइंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ज्वाइंट होता है। और ये दिस न्यूक्लियर मैट्रिक्स प्रोवाइड शेप टू द न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस को शेप प्रोवाइड करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इज दिस, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में क्वेश्चन आता है, ड्रॉ अ वेल लेबल डायग्राम ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का एक वेल लेबल डायग्राम बनाओ। क्वेश्चन इस तरह से भी हो सकता है कि ड्रॉ एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द नेक्स्ट इज द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के बारे में हमने बात की कि बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑर्गेनली है। तो इसकी फंक्शंस क्या क्या हैं? What are the functions of the nucleus? It controls all the metabolic reactions of a cell.
सेल के अंदर जितनी भी मेटाबॉलिक रिएक्शन सेल के अंदर जितनी भी चीजें बनती रहती हैं, टूटती रहती हैं, वो सारी चीजों को कौन कंट्रोल करता है? न्यूक्लियस. इट ब्रिंग्स ग्रोथ ऑफ द सेल. सेल की ग्रोथ में भी न्यूक्लियस का रोल है. इट ऑल्सो कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन. इसके अंदर जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, हमारे जीन्स के बारे में होती है इंफॉर्मेशन, इसी के अंदर होती है कि हमारी आइज का कलर कैसा होगा, हेयर कैसे होंगे, इन सब की जो भी इंफॉर्मेशन है वो सारी इंफॉर्मेशन इस न्यूक्लियस के अंदर स्टोर होती है, जो पेरेंट्स से उनकी ऑफस्प्रिंग में जाती है. फोर्थ वन इज द इट ऑल्सो ब्रिंग्स और इट ऑल्सो कंट्रोल्स द सेल साइकिल. सेल साइकिल क्या है कि एक साइकिल ऑफ इवेंट्स होता है. सेल साइकिल क्या है? इट इज अ साइकिल ऑफ इवेंट्स इन विच ए सेल डिवाइड्स इनटू टू. एक वो इवेंट्स का एक साइकिल जिसमें एक सेल जो है वो दो में डिवाइड करता है. दैट प्रोसेस इज सेल साइकिल, और ये उस सेल साइकिल के प्रोसेस को भी कंट्रोल करता है. दिस इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियस. अब मैंने तुम्हें बताया था कि क्रोमोसोम्स के बारे में मैंने छोड़ दिया था. Now I am going to tell you about the chromosome. What are chromosomes? Chromosomes की जो क्रोमेटीन मटेरियल था न्यूक्लियस के अंदर, वो जब कंडेंस होता है, वो जब शॉर्ट और थिक हो जाते हैं, तो हम उसको क्रोमोसोम्स बोलते हैं. एंड दीज क्रोमोसोम्स दीज आर मेड अप ऑफ डीएनए प्लस प्रोटीन्स. ये किससे बने हुए हैं? डीएनए और प्रोटीन्स, दो चीजों के ये बने हुए हैं. डीएनए आई ऑलरेडी told you the definition full form of the DNA, that is deoxyribonucleic acid. डीएनए और प्रोटीन्स दो चीजों से मिलकर बना है क्रोमोसोम. और इस डीएनए का एक फंक्शनल सेगमेंट ऑफ डीएनए is known as gene. जो फंक्शनल सेगमेंट है इस डीएनए का, ये डीएनए है, जैसे इसका ये पार्ट, ये अगर किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करता है तो इसको हम क्या बोलेंगे? इस सेगमेंट को हम बोलेंगे जीन्स. ओके. अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम्स जो है वो इस तरह की, इट कंसिस्ट ऑफ टू सिस्टर क्रोमैटिड्स. ये क्रोमैटिड्स कंसिस्ट करता है दीज आर द क्रोमैटिड्स एंड दिस सेंटर में ये डिस्क लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, दैट इज सेंट्रोमियर. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ क्रोमोसोम्स. दिस इज द क्रोमोसोम. और क्रोमोसोम्स के बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स और singular, there are two types of, they are diploid and haploid. दो तरह के सेल्स होते हैं. कुछ डिप्लॉइड सेल सुना होगा, कुछ हैप्लॉइड सेल्स होते हैं. डिप्लॉइड्स, if a cell having two set of chromosomes, or we can say 2n, पेयर में अगर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट हैं, दो सेट क्रोमोसोम्स के प्रेजेंट हैं, तो हम उसको बोलेंगे डिप्लॉइड. जैसे कि हमारे नॉर्मल जितने भी सेल्स होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं. हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं, तो दो सेट कैसे हुए? 23 के दो सेट्स होते हैं, 23 पेयर होते हैं, तो हम बोलते हैं डिप्लॉइड. और इफ a cell having only one set of chromosomes, or we can say n number of chromosomes, only 20 beside 23 pair, only 23 number of chromosomes is present, that is haploid. और जो गैमीट सेल, तुम 8th क्लास में पढ़े हैं तुमने, गैमीट सेल्स, स्पर्म, ओव्यूल, वो हैप्लॉइड हैं, जिनके अंदर एक सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होता है. क्योंकि जब ये दोनों फ्यूज करते हैं, दो गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स जब दोनों फ्यूज करते हैं तो 23 मिलकर वापस से 46 डिप्लॉइड बना देते हैं. मैक्सिमम जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो 8 to 50 तक होते हैं.
जो मैक्सिमम क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं ऑर्गेनिजम्स के अंदर, उनका नंबर कितना है, 8 से 50 तक होते हैं। जैसे हमारे अंदर 46 क्रोमोसोम्स हैं। क्लियर बेटा? यहां तक हमारा न्यूक्लियस का टॉपिक हो गया कंप्लीट। न्यूक्लियस के बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में साइटोप्लाज्म के बारे में।